Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Let me first congratulate Asad and S&P committee for arranging this S&P Audit Skills Enhancement Series workshop. I'm sure आपसे पहले जितने sessions हुए होंगे वो बहुत useful होंगे. I was highlighting that not only in Pakistan but internationally, the profession of audit has been in the spotlight. अगर हम पाकिस्तान के context में देखें तो there are many challenges in auditing profession, और ये challenges जो हैं वो range करेंगे, include करेंगे availability of required resources, audit fee, एक lower audit fee environment है, regulatory activism है, number of changes in the auditing standards continuously आ रहे हैं. So it's a challenging environment in Pakistan especially. इस प्रोसेस के अंदर जो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें अपार्ट फ्रॉम कैरिंग आउट जो डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो अपनी जगह, और मेनी ऑफ दोज एस्पेक्ट्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड. आई हैव सीन जो प्रोग्राम था इस वर्कशॉप का. सो यहाँ अब हमने कवर करना है कि ये ऑडिट फील्ड वर्क कंप्लीट हो गया हुआ है और अब हमें इसको कंक्लूड करना है और इसकी रिपोर्टिंग करनी है. सो व्हेन कोई भी ऑडिट फर्म अपना ऑडिट फील्ड वर्क कंप्लीट करती है और जो उसका आउटपुट होता है दैट रियली बिकम्स पब्लिक. रेगुलेटर्स वही डॉक्यूमेंट देखते हैं जो कि पब्लिक में जाता है. जो रिपोर्टिंग जिसको कर रहे हैं हम मेंबर्स हैं कंपनी के या उसके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है. सो इट इज रियली द कम्युनिकेशन एंड द रिपोर्टिंग दैट वी डू व्हेन आवर ऑडिट इज कंक्लूडेड. तो उसकी जो अहमियत है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज दिस इज द डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ द डे where an auditor gets accountable. So starting with my first slide, as I explained that I'm going to cover areas where the audit field work has been completed. Audit field work complete होने के बाद I'm sure you're all experienced enough that you know कि certain significant matters, significant findings होती हैं जो audit से arise हो रही है. So I'll start with that कि audit complete हो गया हुआ है, field work. Now we have significant matters at hand जो during the process of audit हमें highlight हुए हैं. So how we are going to take those forward, and we'll conclude our audit accordingly by issuing a audit report. So if we see and categorize our significant matters, our significant audit findings, उसमें first of all एक मैं segregate कर दूं कि for listed companies we are all aware that there is requirement to have key audit matters. So based out of those significant matters or audit findings, those matters which required significant auditor's attention, that is one form of reporting, and that is covered through International Standards on Auditing ISA 701 key audit matters. So for listed companies only, we will be discussing in the context of those significant auditor attention matters that are covered under 701. So in the subsequent slides, we will cover this one aspect. Then, based on those significant matters and the evidence that we have, those matters may require modification of our audit opinion. जिसको हम commonly qualification कहते हैं. वो matters हमारे सामने हो सकते हैं. So accordingly, उन matters को हमने जो auditing standard है 705 उसमें हम cover करेंगे. So I'll also take you through those matters or relevant matters in terms of reporting.
ड्यूरिंग द ऑडिट हमें कुछ ऐसे मैटर्स भी हमारे सामने आते हैं जो दो not require any modification to our audit reports, but those are fundamental to the users of the financial statements. So here the auditing standard is 706, and I will touch upon those matters which are fundamental to the user's understanding and the relevant requirement. Then there are matters though which are not those are not modification of audit opinion or fundamental to user understandings, but still those are matters that we may consider including in the audit reports, and we call or label those as other matters. तो उसको भी touch Excuse me, upon sir. करेंगे. जी. Sir Farooq, sir, please enlarge the screen. It's not readable over here. It's not legible. ये full screen है. Slides जो आप हैं इसको ये. select करके Right. Just to start again, I have covered from this slide that there are matters which are of significant auditor attention, and those are relevant when it is a listed company and we are to include key audit matters. So 701 का मैंने aspect cover किया है. Then I have mentioned कि if there are matters जो कि हमारी audit report जिसको हम commonly qualification कहते हैं, उन matters को हम cover करेंगे reporting में. 705 ISO 705 है. Then वो matters जो fundamental to users understanding है, commonly हम emphasis of matter कहते हैं. 706 में we are going to cover those. Then I have highlighted that there are matters जो कि do not reported in the financial statements हैं, but those may require in auditor's view that the users of the financial should be aware. So other matter paragraph का एक heading होती है, वो 706 के अंदर हम cover करेंगे. So I will be discussing those. Lastly, on this slide, all those significant audit findings जो हमें audit से arise out हुई है, जो इन किसी भी categories में नहीं आती है, तो वो भी हमको significant audit findings हैं अगर, तो we are under standard 260 जो कि communication with those charged with governance है. अब मैं इसको commonly जो है, क्योंकि हम board of directors को मैं use करूँगा ताकि ये term जो है वो easily understood हो. So board of directors को हम significant audit findings जो हैं, those are also required to be disclosed. This may include के कोई ऐसे matters हैं जो कि material नहीं हैं, but still those where the auditor has a different view, और IFRS की अगर कोई non compliance है या कोई और ऐसा matter है जो कि auditor judgment में that require communication, तो वो board of directors को हमने report करना है. So 701 हमारा आ गया, key audit matter हो गए, qualification हो गई, emphasis of matter हो गया, other matter हो गया, and then जो हमारी communication है जो कि usually हम लोग cover letter के through जब audit की financial statement initials जाते हैं तो उसमें cover करते हैं. So significant other matters जो हैं, the significant matters, significant audit findings, जो कि इन सब में जो मैंने specifically mention नहीं किए हैं, वो भी हमने एक cover letter के through report कर रहे हैं. So I will take you through all of them. Next slide, जी. Right. So this is the list of relevant auditing standards. दो बल्कि 3 standards हैं जिनका अभी मैंने जिक्र नहीं किया था, but वो भी हम इस slides में presentation में discuss करेंगे, cover करेंगे. And that is about के many a times जो corresponding figures होते हैं, उसमें कोई material error अगर सामने आती है, तो उस सूरत में ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या उसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, कवर करेंगे. दैट इज 710. अदर इंफॉर्मेशन जो कि यूजुअली अगर हम लिस्टेड कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दैट इज फुल एनुअल रिपोर्ट. उसके अंदर डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, समटाइम चेयरमैन रिव्यू होता है, कुछ अदर एनालिसिस भी होते हैं, वो उसका पार्ट बनते हैं. सो दैट कॉन्स्टिट्यूट अदर इंफॉर्मेशन.
बट व्हेन इट कम्स टू अनलिस्टेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो उसमें जो अदर मैटर होता है वो कोई किसी फॉर्म में कोई एक एनुअल रिपोर्ट जनरली लोग नहीं बनाते हैं। सो वहाँ जो अदर इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, बिकॉज वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। सो अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उस रिपोर्ट को फॉर अनलिस्टेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिन्होंने कोई एक एनुअल रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, तो उसमें उसको अदर इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वी विल कवर उसमें ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से है, वी विल कवर दैट एज वेल। Lastly, there will be a slide on audit documentation, because जब audit report हम इशू कर रहे हैं, इशू हो जाती है, तो फिर क्या रिक्वायरमेंट्स है वर्किंग पेपर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ब्रीफली हम उसको भी टच अपॉन करेंगे ताकि हमारा ऑडिट कंक्लूजन जो है वो पूरा समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ISA 260, जिसके अंदर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन है, ऑडिटर्स की कम्युनिकेशन, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड को देखेंगे, उस स्टैंडर्ड में 4 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग जो है वो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट कवरिंग द होल 260 standard board of directors के साथ communication. This is in the context of the audit conclusion and reporting. So as I was explaining, it is a requirement that if there are significant findings, so observations arising from the audit that are significant and relevant to the responsibilities of the board of directors, we are as an auditor under the standard are required to report. अब ये कौन से मैटर्स हैं, इसमें ये लिस्ट हुए हुए हैं कि सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव aspects of the entity's accounting practices, accounting policies, accounting estimates and financial statement disclosures. इसमें क्या चीज कवर होती है कि अगर किसी पॉलिसी की सिलेक्शन के अंदर IFRS मोर देन वन ऑप्शन को अवेलेबल कर रहा है और ऑडिटर की जजमेंट में वो ऑप्शन जो कि अलाउड होता है लेकिन वो प्रिफर्ड नहीं है या उसके ख्याल में उस सिचुएशन के लिए बेहतर नहीं है, तो वहाँ जो है ऑडिटर जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं या कोई और अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, सो नॉट नेसेसरली कि वो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई ऑब्जर्वेशन है, बट उनके हवाले से वो ऑडिटर जो है वो कर सकता है अगर उसका कोई कमेंट है ड्यूरिंग जो ऑडिट फाइंडिंग जो मैंने जिक्र किया था कि एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस फील्ड वर्क अगर कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई हुई है। अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इनकाउंटर हुई है, दैट इज आल्सो ऑडिटर्स के पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको अंडर द स्टैंडर्ड उसको बताना है। ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी कुड बी कि जी एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जिसके अंदर ऑडिट से बहुत क्लोज अगर कोई स्केड्यूल्स और डिटेल्स वगैरह दे रहे हैं, तो इस किस्म की चीजें जो है वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में आ सकती है। कुछ और भी इसमें हो सकता है कि कहीं अभी जैसे कोविड के एनवायरनमेंट था, वहाँ वेरिफिकेशन रिलेटेड अगर कोई चैलेंजेस थे तो वो भी रिपोर्टिंग के अंदर आ सकते हैं कि हमने इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया है एज एन ऑडिटर। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हैं वो एज आई एक्सप्लेन कि जी अगर कहीं आपने यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स जो है वो अगर चेंज की है, वो एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। उसकी वजह से ऑल्दो ऑडिटर एग्री करता है कि उसमें कोई मसला नहीं है, बट उसकी वजह से अगर डेप्रिसिएशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है तो वो भी सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर आप उसमें दे सकते हैं। कहीं आपका जो ऑडिटिंग के दौरान आपने नोट किया कि कोई गलती हुई है, कोई एरर है, लेकिन वो मटीरियल नहीं है, तो वो भी ऑडिटर के पास राइट है कि वो उनको रिपोर्ट कर सकता है कि जी ये मैनेजमेंट जो है वो अपने इन प्रोसेसेस को हैंडल कर ले। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसके अंदर कोई असेसमेंट मैनेजमेंट ने आपको दी होती है और ऑडिटर्स उसमें चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी भी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वो कंफर्म कर ले। समटाइम्स कोई प्रोटेक्शंस होती हैं फ्यूचर की, अगर आप डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड अगर आपने कोई अनयूज्ड टैक्स लॉसेस के ऊपर या कोई और डिसीजन है
deferred taxation के हवाले से which requires some projections to be made, तो उसकी अप्रूवल जो है वो भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में है और वो ली है. दो ऑडिटर एग्रीज टू दैट, बट दोज चार्ज विद गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी उसमें हम इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी अप्रूवल के लिए, उनकी कंकरेंस के लिए हम उसमें ले सकते हैं. तो सिग्निफिकेंट मैटर्स का जो है वो एक बड़ा वाइड रेंज है और ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है. एंड दोस रियली कम्स आउट ऑफ द significant matters or the significant audit findings जहाँ से हमने पूरी डिस्कशन स्टार्ट की है. देन अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर अगर कोई चेंज है, हमने मॉडिफिकेशन की बात की है, अदर मैटर है, एम्फेसिस ऑफ मैटर है, की ऑडिट मैटर्स हैं, सो एनी इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, तो वो भी हमको इशू करने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मली साइन करने से पहले इट इज अ रिक्वायरमेंट कि वो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इन्फॉर्म करना है. यूजुअली इसको कवर किया जाता है जो हमारा कवरिंग लेटर होता है इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जो यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, उसके थ्रू उस लेटर के अंदर ये मैटर्स भी जो है वो बोर्ड को आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं, सो दैट जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर रहे हो तो दे आर इन नॉलेज ऑफ those matters which are impacting the audit report. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस हवाले से कोई अपना एक्शन करना चाहते हैं, कोई फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे गेट अ क्वालिफाइड और अ मॉडिफाइड ओपिनियन. इसमें जो स्टैंडर्ड मैंडेट नहीं करता कि एवरीथिंग हैज टू बी इन राइटिंग, मैं लेकिन आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो स्टैंडर्ड में रिकग्नाइज तो हो रही है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि आप फिर अगर ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो आपने क्या कम्युनिकेशन की, किसको की, कब की. सो काइंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंटेशन होगी. प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि दिस गिव्स कम्युनिकेशन, इसमें गैप रह जाता है कहीं ना कहीं. सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर हमने जो मैटर्स मैंने अभी जिक्र किए हैं उसको प्रेफरेंस जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए और उसकी एक कॉपी हमारे यानी ऑडिटर्स के पास भी मौजूद होनी चाहिए. सो रिटन कम्युनिकेशन इज व्हाट इज द सजेशन. But if we go to the standard, then oral communication के थ्रू भी आप कुछ मैटर्स कर सकते हैं. इसका एक फॉर्म जो है वो आप यूँ समझ लें कि समटाइम ऑडिट कमेटी में अगर आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो नॉट नेसेसरली बहुत सारी डिस्कशन जो है वो आपकी रिटन फॉर्म में उस वक्त हो रही हो, लेकिन वो मिनट की फॉर्म में और कब वो रिकॉर्ड हो जाता है. बट इसके अलावा भी अगर आप सेपरेटली कभी ऑडिट कमेटी चेयरमैन से मिल रहे हैं या डायरेक्टर्स के साथ अलग आपकी कोई मीटिंग हो रही है, उसमें भी कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज तब होगी जब आप उसको प्रॉपर्ली अपने वर्किंग पेपर का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाएंगे. So this is about our communication with those charged with governance. मैंने अभी इसकी डेफिनेशन के अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं की है, बट सिंपली स्पीकिंग हम लोग कॉमनली अंडरस्टैंड करते हैं कि एक कंपनी के केस के अंदर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा. अगर कहीं हम किसी और फॉर्म ऑफ एंटिटी में है तो वहाँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो सकता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो सकता है, बट जनरली जो रिस्पॉन्सिबल है उस एंटिटी का, उसकी ओवरसाइट का, उसकी गवर्नेंस का, वो उसके बारे में बात हो रही है, वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस है. दिस इज नॉट द मैनेजमेंट. एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को हम दोज चार्ज विद गवर्नेंस में कवर नहीं करते हैं एज पर द स्टैंडर्ड. थैंक यू. अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम आखिर में ले लेंगे. अगर आप हो तो रिक्वेस्ट किया है कि उसको नोट करते रहें एंड देन वी कैन हैव दैट डिस्कशन. जी, नेक्स्ट स्लाइड. सो एज आई वाज मेंशनिंग कि जहां ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट में अगर हम कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो हमें कम्युनिकेट करनी है. तो मैंने बाकी मैटर्स तो आपको अभी कवर करके बता दिए, बट एक जो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड होता है, और मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग एरिया है गोइंग कंसर्न का.
कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी असेसमेंट, देन उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर, एंड ऑडिटर्स के लिए फिर ये कंक्लूड करना कि वेदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन उनके लिए अप्रोप्रिएट है, अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या करना है, अगर गोइंग कंसर्न के लिए अप्रोप्रिएट है लेकिन अनसर्टेनिटी मौजूद है तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपनी कम्युनिकेशन में क्या करना है, तो वो भी हम इसको, मैं भी ब्रीफली इसको कवर करूंगा, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस इज अगेन समथिंग दैट वी communicate with those charged with governance before we finalize our audit report, or this is also one form of modification. Next slide. अच्छा, एक साल पीछे स्लाइड पे जाइए, जस्ट वन मोर पॉइंट मैं कवर कर लूं। इसमें ये इम्पोर्टेंट है और मैं तवज्जो चाहूंगा इसके ऊपर, खास तौर के ऊपर कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हमारे ऑडिट के सामने आते हैं जिसमें मटेरियल एडजस्टमेंट नहीं होती, लेकिन एडजस्टमेंट्स होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। उनको हम मिस स्टेटमेंट्स, जो स्टैंडर्ड यूज करता है वो इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये किसी फाइनेंशियल नंबर की भी हो सकती है और किसी डिस्क्लोजर की भी हो सकती है। सो जहां ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया कि ये मटेरियल नहीं है इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर, बहुत सारी जो एरर्स हैं या जहां ऑडिटर के व्यू में एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वो भी हमें ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। ये जहन में रख लें कि ये हमें कम्युनिकेट करना है। अगर हमारी नॉलेज में है तो फिर और हमारे वर्किंग के ऊपर आइडेंटिफाइड है, unless that is a trivial जो है वो एक अलग उसमें डिस्कशन है, लेकिन जो आपकी मटेरियलिटी है उस मटेरियलिटी का 5% जो है वो आप कह सकते हैं कि वो एक ट्रिवियल अमाउंट है, तो उसको आप बेशक इसमें इंक्लूड ना करें, लेकिन अगर कोई अनकरेक्टेड स्टेटमेंट है, मटेरियल स्टेटमेंट है, वो भी आपने बतानी है और मटेरियल भी बतानी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो उस पर वो फर्दर कवर हुआ है जी। सो कम्युनिकेशन के अंदर जब आप फाइनली अपना कवर लेटर इशू कर रहे होते हैं, उस दौरान में कुछ रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो हम विद इन दी कवर लेटर भी मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली, बट एक जो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसका सेपरेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो हमने लेना है, जो कि यूजुअली चीफ एग्जीक्यूटिव और सीएफओ कंपनी का जो अकाउंट्स का हेड है वो साइन कर रहा होता है, बट ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बतानी है स्पेसिफिकली। तो द यूजुअल फॉर्म इसमें किया जाता है कि एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिया जाता है जिसके अंदर या तो ये एक साइनिंग कंडीशन रख ली जाती है कि we will sign our audit reports once we have received the letter of representation, which is a copy of which is attached. तो इस तरीके से हो सकता है, और you can make reference that that letter of representation has been provided to the CFO or whoever you have provided, उसका आप नाम रेफरेंस कर सकते हैं और कॉपी उसके साथ आप ऑब्टेन कर लें। सो इन दैट मैनर आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है टू रिप्रेजेंटेशंस की वो भी कम्युनिकेट हो जाती है, पूरी हो जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में। इस लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक कंपोनेंट होता है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो कि इमटेरियल है। सो ये एक जो मैंने अभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको लिस्ट किए थे उसमें नहीं है, आई थिंक 450 है जहां मटेरियल या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के बारे में जिक्र है। तो वहां ये रिक्वायर्ड है कि आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, ऑल्दो अगर ये करेक्ट नहीं होंगी तो हमारे ऑडिट ओपिनियन पे इफेक्ट नहीं आएगा, बट आवर रिक्वेस्ट इज कि आप इसको एडजस्ट कर लें बिकॉज दे आर नोन बिफोर द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो भी आप अपने कवर लेटर के थ्रू इसको कर सकते हैं। आगे चलें। So the first is जो ऑडिट रिपोर्ट का स्टैंडर्ड है, that is ISA 700
और ISO 700 की जो रिपोर्ट है वो एप्लीकेबल हमारे पास दो तरीके से हो रही है। फर्स्ट, अगर इट इज अ कंपनी तो कंपनीज एक्ट के अंदर उन्होंने एक फॉर्मेट जो है ऑडिट रिपोर्ट्स का वो प्रिस्क्राइब कर दिया हुआ है। ये 2017 में कंपनीज एक्ट जब आया तो उसके अंडर ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस का रेगुलेशंस SSCB ने इशू किए, जिसके अंदर सारी प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो दोस कवर द कंपनीज पार्ट, यानी समथिंग व्हिच इज अंडर द कंपनीज एक्ट। तो उसके लिए आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को नहीं देखना है, बट जो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है वो एक मैंडेटरी है। जो वर्डिंग जिस तरीके से वो फॉर्मेट है, कॉमा फुल स्टॉप, उसको फॉलो किया जाए और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड यानी ISO 700 को नहीं देखना है। सिर्फ कंपनीज के केस के अंदर हमें ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन को फॉलो करना है। अदर देन कंपनीज के लिए ICAP में एक ATR 17 है। ATR 17 के अंदर जो बाकी टाइप ऑफ कंपनीज है वो उसमें कवर है। कोई अगर बड़ा कोई स्पेसिफिक ऐसी सिचुएशन जो कि लग रहा हो कि वो कवर्ड नहीं है ATR 17 में, तो स्पेसिफिकली ICAP को टेक्निकल हेल्पलाइन के थ्रू या लिख के उसके बारे में एक एडवाइस या मशवरा किया जा सकता है, गाइडेंस ली जा सकती है। बट ब्रॉडली एज आई सेड कि हमारे पास फ्रॉम ऑडिटर पर्सपेक्टिव दो गाइडेंसेस हैं। वन, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन जो कि मैंडेटरी है, देन ATR 17 भी मेंबर्स के ऊपर मैंडेटरी होता है। वो ATR 17 में जो रेफरेंस किया हुआ है कि उसमें कैसे कवर करना है, और वहां रियली ISO 700 के जो फॉर्मेट है वो यूज होना होता है। तो मैं आपको अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड के अंदर ब्रीफली ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंपनीज एक्ट में जो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में रिपोर्ट है और ISO 700 के अंदर जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसमें ब्रॉडली क्या फर्क है, वो भी मैं ब्रीफली आई विल टच अपॉन दैट एज वेल। थर्ड फॉर्म जो है वो भी ऑडिट है और ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही होती है, वी ऑल नो। लेकिन वो अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, यानी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो उनको जो है उनके लिए जो गवर्निंग स्टैंडर्ड है वो ISO 800 है। सो ISO 800 के फर्दर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आज हम अपनी प्रेजेंटेशन में 800 यानी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कवर नहीं कर रहे हैं, और हमने मेनली जो अपने आप को कवर किया है वो जो कंपनी से रिलेटेड ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। जी, मूव ऑन करें, नेक्स्ट स्लाइड। So I was referring to some of the differences के 700 के फॉर्मेट में क्या है और जो SSCB ने इशू किया है वो क्या है। तो ये जो रिपोर्ट है SSCB ने ये ICAP की कंसल्टेशन के साथ ही इशू हुई थी। इसके लिए भी जो अंडरलाइन स्टैंडर्ड है वो 700 ही है, वहीं से चीजें ली गई हैं। तमाम इसका स्ट्रक्चर और जो वर्डिंग्स हैं वो 700 की है, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। ये मैंने तीन डिफरेंसेस जो हैं वो आपको जस्ट कॉन्शियस करने के लिए लिस्ट किए हैं कि अगर आप देखेंगे तो हमारी ऑडिट ओपिनियन का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें ये वर्ड्स आ रहे होते हैं कि वी स्टेट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि why these wordings were necessary for SSCB to include in the format. So the reason was कि जब आप कंपनीज एक्ट का जो कंटेंट देखेंगे यानी बॉडी ऑफ द लॉ, तो वहां ये रिक्वायर्ड है कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में ये कंफर्म करना है, ये लिखना है। सो इसलिए ये एक ऑब्लिगेशन थी जो कि SSCB ने अकॉर्डिंगली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ISO 700 से वेरिएशन है, बट ये कंपनीज एक्ट की यानी बॉडी ऑफ द लॉ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ये तीनों मैंने लिस्ट किए हैं, ये तीनों स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उसको इंक्लूड करना है।
अच्छा, इसका एक इम्पैक्ट क्या आता है, एंड आई थिंक मैं तवज्जो चाहूंगा इस पे फोकस रखें कि जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है वेयर देयर इज अ स्कोप लिमिटेशन, आपकी ऑडिट क्वालिफिकेशन आ रही है, मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट हो रही है बिकॉज आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, यानी लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, तो उसमें जब आप क्वालिफिकेशन डालते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो इसका खास ख्याल रखें कि यहाँ भी एक्सेप्ट फॉर आएगा। सो ऑडिट रिपोर्ट में जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ तो एक एडिशनल होगा, बट ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ भी एक एक्सेप्ट फॉर आएगा, बिकॉज उस लिमिटेशन स्कोप में हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो इस चीज का आई वांटेड टू हाईलाइट। जो नीचे अगर आप देखें तो वो भी क्योंकि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, बॉडी ऑफ द लॉ से इमिनेट हो रही है, तो इस वजह से ये वर्डिंग स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जब हम आखिर में कहते हैं कि इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशंस, ये पहले वाले पॉइंट से लिंक अप हुआ है। और जो थर्ड मैटर है उसके अंदर गिवन टू एंड फेयर व्यू की जो वर्ड है वो यूज हो रहा है। अगर आप आइजा 700 देखेंगे तो वहाँ फेयरली का वर्ड यूज होता है, ट्रू एंड फेयर भी इक्विवेलेंट है, बट जस्ट टू हाईलाइट के यहाँ क्यों है, उसकी वजह कंटेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट है। इसमें बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड मैं ये बता दूं कि आइजा 700 में भी और एसएससीपी ने जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट जो है वो हेडिंग आती है, अगर आपने नोट किया हो, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक है रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेडिंग होगी, और एक रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की हेडिंग होगी। ये आइजा 700 रिक्वायर करता है कि आपने रिपोर्ट को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है वेयर यू हैव अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने के साथ साथ इफ योर लोकल लॉ requires some other confirmations or assurance as well, then those are to be listed under this heading of report on other legal and regulatory requirements. So Pakistan में Companies Act के अंदर there are certain other legal and regulatory requirements, तो वो वहाँ cover हो रही होती है। जी next slide. So ये इसके अंदर there are 4 matters, और again I would like your attention and the focus के इन 4 मैटर्स के अंदर अगर आप देखें तो चारों मैटर्स बड़े ही सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, और इवन इफ देयर इज एनी मॉडिफिकेशन जो कि रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो यहाँ भी आएगा, यानी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी आ सकता है, एक्सपेंडिचर इनकम के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप क्वालिफिकेशन अगर कहीं हो रही हो तो वो नॉट ओनली कि आपने रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही खाली करनी है, बट अगर उसका कॉन्सिक्वेंस यहाँ है तो यहाँ भी इसको कवर करना है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट मैटर है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी, तो ये अगर आपको याद हो कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था उसमें एक सेक्शन 230 था। 230 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है वो वहां डिफाइंड थी, वहां कवर हुई थी। अब जो उसका इक्विवेलेंट सेक्शन है वो सेक्शन 220 है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर जब आप जाके रीड करेंगे तो वहां आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिस्ट नहीं होते हुए नजर आएंगे, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो टर्म है वो कंपनीज एक्ट के अंदर अब डेफिनेशंस में चला गया हुआ है। सो वो कंटेंट जो प्रीवियसली कंपनीज ऑर्डिनेंस में होता था वो कंटेंट जो है नाउ दैट इज कवर्ड इन दी डेफिनेशंस पार्ट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वहां डिफाइन हुई भी है, उसके अंदर कोई सच फर्क नहीं है, एक दो जुमलों का कुछ फर्क है, बट वो ऐसा सब्सटेंटिव नहीं है कि मैं उसमें आपकी कोई खास तवज्जो दिलाऊं। बट
ये ना अंडरस्टैंडिंग हो कि जब हम 220 जाके देखते हैं तो चूंकि वहां कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट की कोई लिस्टिंग नहीं है, तो हम अपने मर्जी से या अपने अंडरस्टैंडिंग से हम कुछ कर लें, ऐसा नहीं है। उसकी डेफिनेशन के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, तो उसकी गाइडेंस प्लीज आप हर वक्त वहां से देखा कीजिए। जो जो थर्ड इसके अंदर है, अगेन दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर वर फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज बिजनेस। इसमें जो कॉमनली मैंने देखा है, मेरी नॉलेज में ये आता है कि इसके पीछे वर्क पेपर नहीं होते हमारे ऑडिट फाइल के अंदर। इस कॉन्फर्मेशन को जब हम दे रहे होते हैं, ये जब अश्योर कर रहे होते हैं, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये आपने स्टेटमेंट कैसे दिया है, तो हमारे पास इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्किंग पेपर्स होने चाहिए जहां इसका एक्सप्रेस यानी कंक्लूजन जो है वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। सो ये मेरी सजेशन ये है कि जो आप वर्किंग पेपर फाइल बनाएं उसमें ये क्या सेक्शन कर लें, कोई ऑडिट प्रोसीजर इसको लिख लें, लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो हम जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई वर्किंग पेपर जो है वो मौजूद होना चाहिए, जो इफ एंड व्हेन वी आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन देन वी शुड बी एबल टू। सो ऑडिट रिपोर्टिंग के अंदर, ऑडिट कंक्लूजन के अंदर इस फैक्टर को मिस ना किया। ज़कात का कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरे ख्याल में बड़े सालों से है और हम लोग वेरी वेल इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसा पैच नहीं है। अगर कोई ज़कात नहीं काटी, नहीं इशू नहीं हुई है, कंपनी के केस में सिर्फ एक जगह होती है, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड के अलावा कंपनी के केस में ज़कात की डिडक्शन नहीं है। सो वहाँ अगर डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो फिर आपका ये सेंटेंस आएगा, अदरवाइज आएगा कि वो ज़कात। ये दिस इज अबाउट द अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जी नेक्स्ट। नाउ एज आई वाज एक्सप्लेनिंग कि जब हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ फिर हमारे पास कंसिडरेशंस क्या है। सो वन ऑफ द कंसिडरेशन, जैसे मैंने कहा कि अगर गोइंग कंसर्न का इम्पैक्ट है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कंपनी किसी वजह से स्ट्रेस में थी, कोई फाइनेंशियल उसके इश्यूज आ गए, या कोई लाइसेंस की एक्सपायरी आ गई, या कोई और ऐसी वजह है जिसकी वजह से नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर उस एंटिटी का नॉर्मल कोर्स में चलना जो है उस पर क्वेश्चन है। अगर अच्छा, इसमें जस्ट टू सेट द सीन, मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करूंगा कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ है, बल्कि आप यूं समझ लें कि एक पैराग्राफ है और फिर एक उसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। सो रियली 2 पैराग्राफ्स हैं पूरे आईएफआरएस के अंदर जो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे होते हैं गोइंग कंसर्न के बारे में। ये मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है उसका पैराग्राफ 25 है, जहां गोइंग कंसर्न के बारे में जिक्र है, और पैरा 26 के अंदर फिर फर्दर थोड़ा सा और उसको है। तो वहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि अगर देयर इज नो, अगर वो सीज ट्रेडिंग कर रही हो या कोई रियलिस्टिक चांस नहीं है उसके ऑपरेशन का, तो फिर जो है वो आप नॉन गोइंग कंसर्न होगा। और अगर वो डिटरमिन हो गया कि नॉन गोइंग कंसर्न है, देन आईएफआरएस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली उसके ऊपर साइलेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर इंस्टीट्यूट की एक गाइडलाइन इशू हुई भी है, वहां से आपने रेफर करना है, दैट इज अ केस ऑफ अ नॉन गोइंग कंसर्न। लेकिन जहां गोइंग कंसर्न का जम्पशन है आईएएस 1 पैरा 25 के मुताबिक, तो उसमें फिर फर्दर शायद पैरा आईएएस 1 का 21 के आसपास के से कुछ पैराग्राफ्स हैं जहां फिर रिस्क बेस्ड आपने एनालिसिस करना है, उसका डिस्क्लोजर्स करने हैं। सो गोइंग कंसर्न रिलेटेड ऑब्लिगेशन है कंपनीज के ऊपर कि उसका डिस्क्लोजर करना है जहां कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी का केस आए।
सो जब पुराना जो गोइंग कंसर्न रिलेटेड स्टैंडर्ड था, क्योंकि ये 570 गोइंग कंसर्न का ऑडिट में रिवाइज हुआ, और इसमें एक कॉन्सेप्ट आया क्लोज कॉल सिचुएशन का। तो क्लोज कॉल सिचुएशन के अंदर यदि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न डाउटफुल हो गई है, लेकिन मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जो कि उसको कर रहे हैं, तो ये सारा डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर देना है, ये कंपनीज की ऑब्लिगेशन है। So when it comes to the audited reporting part, हमारे conclusion के लिए we need to see if there is any material uncertainty that exists. अगर वो हमने conclude किया, कंपनी ने conclude किया है, ऑडिटर ने हमने conclude किया है कि going concern assumption inappropriate है, right? तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हमें यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गोइंग कंसर्न पे बने हैं, लेकिन ऑडिटर का कंक्लूजन है कि गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, तो ये स्ट्रेट अवे एडवर्स ओपिनियन जाएगा। ये खास ख्याल रखें, अगर मैनेजमेंट ने अकाउंट गोइंग कंसर्न पे बनाए हैं, बट ऑडिटर्स कंक्लूजन इज कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनएप्रोप्रिएट, देन दिस वुड लीड टू एडवर्स ओपिनियन। अगर उसमें गोइंग कंसर्न assumption जो है वो appropriate है, मगर material uncertainty है, close call वाली situation भी है, उसका appropriate disclosure accounts में अगर मौजूद है, तो in that case the obligation on the auditor is to include a paragraph which is separate from matter emphasis, separate from the qualification, with the heading material uncertainty relating to going concern. वो फिर वहां हमें ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है, उसमें हमने रेफर करना है उस पैराग्राफ को जहां गोइंग कंसर्न का मैटर यानी अनसर्टेनिटी डिफाइन या लिखी हुई है, और फिर उसके मुताबिक हमें अपना यानी लिखना है कि आवर ऑडिट ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड, बट हमने उसकी तरफ तवज्जो दी है जहां मटीरियल अनसर्टेनिटी है। हाउएवर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो जो डिस्क्लोजर है अबाउट द मटीरियल अनसर्टेनिटी, यानी आपका एग्रीमेंट है कि गोइंग कंसर्न असम्पशन है, लेकिन उससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर है, जो एक्सप्लेनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर आपने उसको क्वालिफाइड ओपिनियन की तरफ लेकर जाना है। तो ये तीन इसमें सिनेरियोज हैं। वन के मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट है, then material uncertainty paragraph audit report में include होगा। If it is if disclosure ठीक नहीं है, then in that case qualified opinion होगा। अगर going concern assumption ही inappropriate है, but financial statements are prepared based on going concern assumption, in that case audit report जो है वो adverse opinion होगा। जी next slide। तो हमने जहां से फर्स्ट स्लाइड पे जो डिस्कशन स्टार्ट की थी, वहां आई मेंशन के लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑब्लिगेशन है कि की ऑडिट मैटर्स जो हैं वो हमें ऑडिट रिपोर्ट में डालने हैं। The first and foremost thing for all of us to understand, and very clearly I'm making this statement, inclusion of key audit matter is not a substitute for any qualification, for any matter or emphasis or going concern. Key audit matters are those matters where the auditor has agreed to the management position, यानी उसका कोई difference of opinion नहीं है। ये बहुत खास बात है, नोट करें कि किसी भी तरीके से इंक्लूजन ऑफ की ऑडिट मैटर ऑडिट क्वालिफिकेशन या मैटर एम्फेसिस को कवर नहीं करता। सो दीज आर द मैटर्स विच आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। यहाँ वर्ड सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, ये विद द एडिशन ऑफ द वर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। सो शुरू में जो हमने बात की थी कि there are many audit findings, significant audit findings, but not all significant audit findings will constitute key audit matters. उन significant audit
फाइंडिंग्स में से, सिग्निफिकेंट मैटर्स में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगी वो आपको की ऑडिट मैटर के हॉरिजॉन में लाना होगा, उनको इंक्लूड करना होगा, नॉट ऑल. So I just wanted to emphasize on this कि ये are matters which are significant for the auditor's attention, and those significant matters have to be the most significant. So वो हमने की audit matters के लिए cover करने हैं. Next slide. Now, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, इसको मैं हमेशा कॉमनली एक्सप्लेन करता हूं कि आप यूं समझ लें कि आपके 3 सेपरेट जार्स हैं, 3 सेपरेट एरियाज हैं जिसके अंदर इनमें से आपने सिलेक्ट करना है. तो एक कंपोनेंट जो है या एक जार जो है, एक डब्बा, एक एरिया, वो है जहां हायर रिस्क है. आपको ऑडिट करते हुए उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया आपने जहां सिग्निफिकेंट रिस्क था, यानी आपने उसमें सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन दी बिकॉज कि उस एरिया की सिग्निफिकेंस जो थी उसमें रिस्क जो है वो ज्यादा था, हायर रिस्क एरिया था. सो वो एक आपका कंपोनेंट हो जाएगा. दूसरा जो है जहां सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट है, और ये इन्वॉल्व होती है जहां उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट में सिग्निफिकेंट एस्टिमेट हो या सिग्निफिकेंट जजमेंट मैनेजमेंट की हो, तो वो एक एरिया आ जाते हैं. और थर्ड वो होते हैं जहां कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया उस साल के अंदर, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो गई विच इज इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई एक्विजिशन हो गई ड्यूरिंग द ईयर, तो वहां आ गया कोई नया ऐसा लॉ आ गया जो कि आपके फाइनेंशियल, यानी यू आर एग्रीइंग टू दैट ऑल हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द accounting framework. There are no disagreements, no disputes, nothing. But क्योंकि उसकी इतनी significance थी, आया because of in itself वो transaction ऐसी थी, कोई ऐसी development हो गई जिसकी वजह से financial statements पे impact आ रहा है, तो वो एक third component है. तो आपने इन 3 को separately जो most significant matters मैंने बात की है उसमें identify करना है, and accordingly जो key audit matters की wording होगी वो इसी तरीके से होगी कि वो हायर रिस्क था, यहाँ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट और जजमेंट की मैनेजमेंट की, या ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी, इस वजह से हमने उसको की ऑडिट मैटर लिया है फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली. आई गिव यू सम एग्जांपल्स. जी नेक्स्ट स्लाइड. सो आई थिंक ये प्रेजेंटेशन जो है वो आई वुड रिक्वेस्ट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उसको सबको शेयर भी कर लेंगे. इसमें ये वर्डिंग के मैं बहुत डिटेल में इसको रीड नहीं करूंगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट कि अगर आप इसका लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है कि एक जगह हम की ऑडिट मैटर को एक्सप्लेन करते हैं और दूसरी तरफ जो है कि हमने इस की ऑडिट मैटर को हमने किस तरीके से अपने ऑडिट में एड्रेस किया है, उसके प्रोसीजर्स लिखे होते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है. इसमें जो है वो आप अगर नोट करेंगे तो एक आपको नजर आएगी कि एक तो हेडिंग है कि ये किस से रिलेट करता है. ये वर्ड यहाँ इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है. आपके यहाँ कोई डेप्रिसिएशन आ सकता है, वैल्यूएशन आ सकता है, कोई भी और इंटेंजिबल आ सकता है, तो आपने वो आइडेंटिफाई कर दिया. देन आपने खास ख्याल रखना है और ये बिल्कुल इसको मिस नहीं करना कि जब भी की ऑडिट मैटर बनाया जा रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम, किसी डिस्क्लोजर से लिंक होगा. सो उसका रेफरेंस जो है, उसका लिंकेज हमें इस्टेब्लिश करना है. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने एग्जैक्टली इसी तरह का फॉर्मेट यूज करना है. आप इसकी डिस्क्रिप्शन की वर्डिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है कि एक सेपरेट इसको इन्वर्टेड में दिया हुआ है कि रेफर नोट दिस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी आप बता सकते हैं. लेकिन लिंकिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन आपने डिस्क्रिप्शन दी है कि मैटर है क्या, और जो लास्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर ये बताया है कि इसको की ऑडिट मैटर क्यों कह रहे हैं. तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि द एक्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट is significant to the financial statements and a higher risk area for the audit. Hence, we have considered this to be a key audit matter.
तो ये तमाम की ऑडिट मैटर्स का जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसके अंदर जो है ये चीज बताई जाती है। पहले जो है उसका मैटर है क्या, और आखिर में के अंदर कि ये की ऑडिट मैटर क्यों डिटरमिन किया है। बट इसके अंदर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि दीज आर ऑल बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट। इसके अंदर कोई ये इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली नॉक डाउन नहीं कर सकता कि जी ये ऑडिटर जजमेंट में की ऑडिट मैटर था या नहीं था, लेकिन इसका डिस्पोजल प्रोसेस वर्किंग पेपर पे जरूर रखिया कीजिए कि जब भी जो सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द लिस्टेड कंपनीज, कि उन सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर को हमने क्यों की ऑडिट मैटर लिया या क्यों ऑडिट मैटर की ऑडिट मैटर नहीं किया, उसका एक वर्क पेपर होना चाहिए ताकि ये डिस्पोजल हो और ऑडिटर की जो जजमेंट है वो डॉक्यूमेंट हो रही हो। सो दिस इज द फर्स्ट आइटम जो कि हायर रिस्क एरिया का है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके सामने जो इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो लिखे हुए हैं। अगेन इसके अंदर कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने अपने सारे प्रोसीजर A to Z सब लिख देने हैं। यहाँ आपने देखा हो कि इसकी वर्डिंग है कि आर ऑडिट प्रोसीजर अमंगस्ट अदर्स इंक्लूडेड, तो ये लिख सकते हैं इंक्लूडेड। तो इससे आपके पास थोड़ी सी जगह रहेगी कि अगर कोई ऑडिट प्रोसीजर आपने यहाँ नहीं भी डॉक्यूमेंट किया, आपके वर्किंग पेपर पे है, तो नोबडी कैन होल्ड यू ऑन दैट कि आपने यहाँ प्रॉपर्ली लिखा नहीं है। तो यहाँ इंक्लूडेड करके है और ये बाकी सारे प्रोसीजर्स हैं। इसमें हमें किन चीजों की एहतियात रखनी है वो मैं अपनी इस एरिया की लास्ट स्लाइड में बता दूंगा। सो यहाँ नोट कर लें कि जी कि हायर रिस्क एरिया से रिलेटेड मैंने अभी ये एक एग्जांपल आपको दिखाई। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अबाउट ये जो सिग्निफिकेंट एस्टिमेट या मैनेजमेंट जजमेंट जहां इन्वॉल्व थी, वो एक एग्जांपल है। अगर लोग इंश्योरेंस से अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ एक IBNR का कॉन्सेप्ट होता है। IBNR को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे assumptions हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं उसके अंदर, तो ये उससे रिलेटेड मैटर यहाँ लिखा हुआ है। अगेन इफ यू नोट के जो लास्ट पैराग्राफ है वो बता रहा है कि इसमें क्यों इसको हमने की ऑडिट मैटर दिया है। सो जब भी की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग कर रहे हो, मेरी आपको सजेशन ये है कि इसको इसी तरीके से स्ट्रक्चर रखेंगे तो आपका हमेशा की ऑडिट मैटर जो है वो एक बेहतर अंदाज में यूजर्स के लिए यूजफुल होगा। अगेन जो प्रोसीजर्स के बारे में मैंने जिक्र कर दिया हुआ है। जी नेक्स्ट स्लाइड। ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट का कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर एक नया स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेशन आ गया हुआ है। आपने सब अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लिया, देख लिया, बट ये क्योंकि एक नया स्टैंडर्ड था लीज से रिलेटेड, तो बहुत सारा जो है वो सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इसकी तरफ चली गई और ये ऑडिटर जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर था, हेंस इसको इंक्लूड कर दिया है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा लॉ आ गया जिसने इम्पैक्ट कर दिया, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट एक्विजिशन हो गई, सो वो हम बता सकते हैं कोई बहुत ही बड़ा कोई प्रोजेक्ट कंपनी ने स्टार्ट कर दिया कैपिटल नेचर का, तो वहां फिर आपकी उसकी कैपिटलाइजेशन तो वो भी सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर या सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शंस के अंदर आ सकता है। इसमें कहीं कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने हर मैटर को, यानी लाजिम है कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट हो, लाजिम है कि एक जजमेंट वाला हो। It all depends upon the auditor judgment. There could be a one key audit matter, there could be 10 key audit matters, but इसके ऊपर एक स्टडी की गई थी। हमने ICAP ने भी इसके ऊपर स्टडी की, मैंने पर्सनली भी इसके ऊपर कुछ स्टडी की थी, और हमारा जो इस पे फाइंडिंग है या जो अंडरस्टैंडिंग है कि जनरली जो है वो ज्यादातर जो की ऑडिट मैटर्स आए हैं वो 3, 2, 3, 4 इस रेंज के अंदर जो है वो ज्यादातर आए हैं। इससे ज्यादा जो है वो की ऑडिट मैटर्स बहुत बाय एक्सेप्शन होते हैं। अगेन एक की ऑडिट मैटर भी मैंने देखा है कि बाय एक्सेप्शन होता है, और जनरली जो है वो 2, 3 और 4 जो है ये रेंज जो है वो ज्यादा देखी गई है की ऑडिट मैटर्स की, जो कि ऑडिटर की मोस्ट सिग्निफिकेंट अटेंशन के अंदर आता है। there is a provision in the standard के कोई की ऑडिट मैटर नहीं भी हो सकता। there may be a situation that there is no key audit matter, जिससे बहुत ही रूटीन नॉर्मल किस्म का ऑडिट था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन हो, तो ये भी स्टैंडर्ड कहता है। बट अगेन ये एक एक्सेप्शनल है, नॉट थ्रू द स्टैंडर्ड, बट वैसे मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ
कि अगर आप जब ये लिखना शुरू करेंगे कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं था, तो ये जरा रेगुलेटर की अटेंशन में ज्यादा आता है। तो कोशिश किया कीजिए, और मेरा एक्सपीरियंस भी यह है कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी ऑडिट और लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और उसमें एक की ऑडिट मैटर नहीं है। सो ऑल्दो एज आई सेड के स्टैंडर्ड मैंडेट नहीं करता कि आपने लाजिम है कि की ऑडिट मैटर लिखने ही लिखने हैं। एक आप लाइन भी लिख सकते हैं, कोई की ऑडिट मैटर नहीं था, बट दैट इज नॉट माय एडवाइस। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। राइट जी, इसमें की ऑडिट मैटर्स के अंदर इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा है कि अगर आपने मैटर और एम्फेसिस लिख रहे हैं तो वो की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता। गोइंग कंसर्न का अगर मटेरियल सर्टेनिटी है तो वो भी की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें मैं जरा एक फाइन पॉइंट है वो ये बता दूं कि ऑल्दो की, और अगर आपकी मटेरियल सर्टेनिटी है वो की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता, लेकिन अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैराग्राफ नहीं ऐड हो रहा, यानी ऑडिटर ने, पहले कंपनी ने और फिर ऑडिटर ने कंक्लूड किया है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन आपके ऑडिट के अंदर बहुत फोकस आया और ऑडिट के अंदर आपने उसको यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट अटेंशन दी कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि फाइनली दो यू कंक्लूडेड कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऑडिटर सिग्निफिकेंट अटेंशन थी, तो फिर वो की ऑडिट मैटर हो सकता है। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज टू अंडरस्टैंड इज कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ एडेड है तो फिर की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो एडेड नहीं है तो फिर टेक्निकली क्योंकि सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन अगर आई है तो फिर वो की ऑडिट मैटर हो सकता है। जो बाकी मैटर एम्फेसिस वगैरह है वो अगर आप दे रहे हैं तो वो फिर की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता। जी नेक्स्ट स्लाइड। जी ये कवर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। जी ये नोट्स ऑफ आइजा 701 है, और मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन द फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है। इसके ऊपर बहुत ध्यान रखिए कीजिएगा जब कभी भी की ऑडिट मैटर बनाए, always conscious of that you as an auditor should not be the provider of original information। यानी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई चीज आप अपने की ऑडिट मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे which is not coming out of the financial statement, director's report या otherwise publicly available है। Auditor cannot be the source of original information। आप अपने वर्किंग पेपर से, बिकॉज आपका कोई स्पेसिफिक आपका, क्योंकि हमारा एक्सेस होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो हम सोर्स ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं हो सकते। सो ऑलवेज रेफर टू द नोट जहां उसकी सारी डिटेल है, उससे रिलेटेड एक्सप्लेन कर दें, बट ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना है ऑडिटर को, बिकॉज ये फिर एक डिफरेंट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हमारे पास चैलेंजेस आ सकते हैं थ्रू द कंपनी। उसकी ड्राफ्टिंग में आइदर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द की ऑडिट मैटर और व्हेन वी आर राइटिंग द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, वो इस तरीके से नहीं होने हैं कि आप उस वेरी मैटर पे कोई ओपिनियन दे रहे हैं। यानी अभी मैंने आपको आईबीएनआर का बताया, मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन का बताया, तो it is not something that you are giving a specific opinion on IBNR or IFRS 16 या कोई और की ऑडिट मैटर है। You are not giving an opinion on that very specific matter। So कोई वर्डिंग आपकी ऐसी ना हो। ये वन ऑफ द, क्योंकि ऑडिट इज ऑडिट एज अ होल ओपिनियन दिया जा रहा है, उस स्पेसिफिक मैटर पे नहीं है। सिमिलरली उसकी जो लैंग्वेज हो वो ऐसी ना हो कि आप आखिर में जाके उसको कोई एक कंक्लूजन कर रहे हो कि हाँ जी ये पर्टिकुलर आइटम जो है वो ट्रू एंड फेयर है और फेयरली स्टेटेड है। इस तरीके से वर्डिंग नहीं होनी है। ये सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर था दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई यू हैव चूजन दैट एज ए की ऑडिट मैटर एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट यू हैव डन। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 701 के अंदर इसकी एक फाइंडिंग का कॉन्टेक्स्ट में चीजें लिखी हुई है, बट ये इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो वहां उसको यूज भी किया गया है, बट जो प्रेफर्ड तरीकेकार है कि आप उस तरफ ना जाएं, क्योंकि उसको भी
एक्सप्लेन करने की ध्यान से वर्डिंग लिखनी होती है, तो एडवाइस मेरी सजेशन ये है कि आप कंक्लूसिव फाइंडिंग के थ्रू अपने हाउ द मैटर हैज बीन एड्रेस्ड वो अवॉइड करें, उस तरफ ना जाएं। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी है, इस तरीके से आप उसको फॉलो करें ताकि आप उस मैटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड हाउ यू हैव एड्रेस वो कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे उस वेरी आइटम के ऊपर। जो आपकी वर्डिंग्स हो वो इस तरह की ना हो कि आप उसमें अगेन कोई स्टेप जो है वो अश्योर कर रहे हो। तो आप जनरली जैसे रिव्यूड का वर्ड हम लोग लिखते हैं, रिव्यू की एक खास मीनिंग है, यानी वो हम उसमें चले जाते हैं जो 2400 है हमारा रिव्यू एंगेजमेंट्स का, तो वहां इस चीज की भी वर्डिंग को अवॉइड करें, ज्यादा यही लिखें कि हमने चेक किया है, असेस किया है, ऑब्जर्व किया है, इस टाइप की वर्डिंग हो। कंक्लूसिव जो है वो चीज ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। So moving on from the key audit matters to the modification of audit opinion, the 705 standard है, ISO 705 that deals with the modification, and here ये एक simple table है, इसको हमेशा understand रखें, इसको अपने सामने रखें कि whenever there is a situation where audit report is to be modified, qualified opinion है अगर आपका, तो डिस्क्लेमर है, एडवर्स है, ये 3 टाइप्स ऑफ ओपिनियन होते हैं, उसमें हम क्वालिफाइड है, एडवर्स है और डिस्क्लेमर है। तो ये एक सिंपल जो टेबल है ये आपको तवज्जो दिला देगा कि आपका फॉर्म ऑफ ऑडिट ओपिनियन क्या होगा इन मॉडिफिकेशन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है मटीरियल एंड परवेसिव का। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड मटीरियल परवेसिव। मटीरियल तो हमने बात कर ली हुई है कि अगर वो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, जो डेफिनेशन हमारे फ्रेमवर्क्स में मौजूद है, तभी मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। मटेरियल आइटम के ऊपर तो मॉडिफिकेशन का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। सो मटेरियल तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, बट ये जो डिफरेंसेस हैं कि कब आपने एडवर्स और डिस्क्लेमर की तरफ जाना है, वो लिंक होता है परवेसिवनेस से। सो जो टर्म परवेसिवनेस है या परवेसिव टर्म जो है वो 705 में डिफाइंड है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये ऑडिटर जजमेंट में है, ठीक है, ये हार्ड कोडेड नहीं है, ये ऑडिटर के जजमेंट में है कि ये मैटर परवेसिव है या नहीं। सो व्हाट इज परवेसिव? सो परवेसिव इज समथिंग कि जिसमें उसका जो इम्पैक्ट है, जहां आपका डिसएग्रीमेंट है, जहां आपका कोई लिमिटेशन है, तो वो ऐसा है कि जो मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपका। यानी अगर आप ऐसा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट है जो कि बहुत बैलेंस शीट के ऊपर बहुत बड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत बहुत बड़ा है, और वो पूरा का पूरा जो है उस पे आपका इशू है, तो फिर उस सूरत में वो परवेसिवनेस की तरफ जाएगा। सो एनीथिंग व्हिच इज अफेक्टिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट को कर रहा है, एक दो नहीं बहुत सारी जगहों पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है, या वो इन इटसेल्फ इतना बड़ा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट ओवरवेलमिंग है, तो फिर आप उसको परवेसिवनेस की तरफ लेकर जाते हैं। ये डेफिनेशन दी हुई है। सो नाउ करना क्या है? सो करना ये होगा कि अगर वो मटेरियल है और परवेसिव नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो ओपिनियन आपका क्वालिफाइड होगा। लेकिन अगर वो परवेसिव है तो उस सिचुएशन में डिस्क्लेमर नहीं होता, उस सिचुएशन में एडवर्स होता है, यानी मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, देन आपने परवेसिवनेस के केस में एडवर्स ओपिनियन देना है, व्हिच इज दैट दे डू नॉट present fairly या do not represent true and fair view of the financial statement, तो एडवर्स ओपिनियन की तरफ जाना है। अच्छा, जो जहां स्कोप लिमिटेशन होती है, वहां जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो ये होता है कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑडिटर को नहीं मिला है, तो दैट इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू कंसिडर कि क्या वो परवेसिवनेस है, तो डिस्क्लेम कर देंगे आप। यानी हम इन अकाउंट्स के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम डिस्क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनेबिलिटी है ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस।
लेकिन अगर वो जैसे हमने कहा कि जी परवेसिवनेस नहीं है, तो फिर उस सूरत में वो रिस्ट्रिक्टेड टू दैट आइटम होगा और क्वालिफाइड ओपिनियन होगा। ये जो सेकंड पार्ट है, जहां सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे इनेबिलिटी है, यानी लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, तो मैंने आपको शुरू में तवज्जो दिलाई कि वहां फिर ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड पे भी हमने एक्सेप्ट फॉर लिखना है। और इसमें फिर वो होता है कि कहीं एक्सेप्ट फॉर होता है, फिर पॉसिबल इफेक्ट्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन, लिमिटेशन ऑफ स्कोप आई है, तो फिर वहां वर्ड पॉसिबल इफेक्ट्स का यूज होता है जब हम क्वालिफाई करते हैं ना, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स आएगा, एक्सेप्ट फॉर द, वो पहले आइटम में आएगा कि एक्सेप्ट फॉर दिस आइटम। तो यहाँ ब्रॉडली, क्योंकि ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ा एरिया है, मैं इस लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन कि ये टेबल अपने सामने रखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, जो आपकी ऑडिटर रिपोर्टिंग है, उसकी जो एप्लीकेशन है, वो एक रिक्वायर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एप्रोप्रिएट रहेगी जब आप उसको अपनी इनसाइट रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें जो एक थोड़ा सा फ्लो ऑफ रीचिंग टू अ फाइनल इशू ऑफ रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपकी आइडेंटिफाई हो गई हुई है जिसमें रिलेट टू एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट, जिसमें अकाउंटिंग का इशू हो सकता है, या कोई ऐसा मैटर है वेयर यू फील के डिस्क्लोजर जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर इसका जो प्रोसेस है उसके अंदर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, दो स्टार विद गवर्नेंस को आपने इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है, पहले बताना है आपने, आफ्टर द क्वालिफिकेशन नहीं, इशू रिपोर्ट के बाद नहीं, पहले इसको करना है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम उसके रेजोल्यूशन के अंदर कोई ना कोई एक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ तो डिसएग्रीमेंट। अब आप दो स्टार विद गवर्नेंस के पास चले गए हैं, पहले अगर आपने इन्फॉर्म किया है, तो फिर उसकी जो रेजोल्यूशन है, मेरे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये रहा है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ निकलना शुरू हो जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा वो निकले। और अगर वो मैटर अनरिजॉल्व रह जाता है, तो फिर हमने डिटर्मिनेशन करनी है परवेसिवनेस की। अगर वो परवेसिव है, तो फिर हमने उसको रिवर्स ओपिनियन की तरफ जाना है, अदरवाइज क्वालिफाइड ओपिनियन की तरफ जाना है। लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, तो फिर हम परवेसिव केस के अंदर डिस्क्लेमर की तरफ हम जाएंगे। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जस्ट टू मेक मोर अंडरस्टैंडिंग के इसको हमने फ्लो ऑफ कंक्लूजन की तरफ कैसे लेके जाना है। जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है कि अगर आपका लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, इसमें स्टैंडर्ड्स जो है वो विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट का भी कहते हैं कि अगर आप कर सके तो आप विड्रॉ कर ले। प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि विड्रॉल जो है वो नहीं हो रही होती है, और ऑडिटर जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाता है। अगर जो लेटेस्ट कोड ऑफ एथिक्स है वहां देखें, तो वहां अगेन दो, ऐसा नहीं है कि विड्रॉल हो नहीं सकती, लेकिन जनरली जो है वो फिर विड्रॉल के बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं कि आपने किस तरह से कर दी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। रूटीनली प्रैक्टिकली एज आई सेड, अगर कोई ऐसा मैटर होता है तो हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। विड्रॉ बहुत ही रेयर केसेस में मेरे एक्सपीरियंस में आया है, बट द स्टैंडर्ड की ये मैंने आपको बता दिया वो है। तो जहाँ लिमिटेशन ऑफ स्कोप होता है वहां पर आपने इस चीज को देखना है, और अगेन सेट कि अगर परमिसिव है तो डिस्क्लेमर की तरफ हम जाएंगे। जी, नेक्स्ट। एम्फेसिस ऑफ मैटर, ये इसको भी हम बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें कि एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्वालिफिकेशन। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। कई दफा हम ये समझते हैं, ये मैंने लोगों से डिस्कस करते हुए भी देखा है कि यार चले यार एम्फेसिस ऑफ मैटर तो डाल देना ऑडिट रिपोर्ट पे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, टेक एक्स्ट्रा केयर कि मैटर ऑफ एम्फेसिस is not a replacement to modification. It is not a replacement of qualification. So where we include matter emphasis. So matter emphasis का जो context है वो बड़ा broader है,
और इसमें जो स्टैंडर्ड ने प्रिंसिपल बताया है वो ये बताया है कि ऑडिटर जजमेंट में, अगेन आई एम्फसाइज दैट दिस इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर जजमेंट, where the auditor feels that it is of so significant, it is so significant कि fundamental to the user's understanding है, in those cases जो है हम matter emphasis के अंदर जाएंगे. So emphasis of matter जो है वो देना allowed है, emphasis of matter को देने में कोई हर्ज नहीं है, it is not a qualification, but we all know कि audit report के अंदर जब क्लाइंट जरा सा भी कोई नॉन स्टैंडर्ड चीज देखते हैं तो रिएक्शन होता है. सो मैटर एम्फेसिस की जो है वो बहुत केयरफुली डालें. हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी प्रैक्टिस है, मैं अपनी फर्म के हवाले से अगर बात करूं तो हम उसको डिस्करेज करते हैं. मेरा एक रोल एज रिस्क मैनेजमेंट पार्टनर भी है फर्म के अंदर, तो मेरे पास बहुत सिचुएशंस आती है जहां एंगेजमेंट टीम्स जो हैं वो एम्फेसिस ऑफ मैटर को ला रही होती है. बट जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि हम एम्फेसिस ऑफ मैटर का वाइडर यूज इनकरेज नहीं करता है, क्योंकि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और इसलिए उसमें एहतियात करनी है कि वाकई कोई ऐसा मैटर है जो कि फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर उसको इंक्लूड करें, बट इसका वाइडर यूज जो है वो इज नॉट इनकरेज्ड. जो चंद एग्जांपल्स उसमें दी हुई हैं स्टैंडर्ड के अंदर कि कोई इतना सिग्निफिकेंट लिटिगेशन है आपका कोर्ट के अंदर, वो फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल आ सकता है. और भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां उसका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट है कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो अफेक्ट कर रहा है, तो मैटर एम्फेसिस वहां भी फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग आ सकता है. बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकती है, आई कांट कवर एवरी उसकी सिचुएशन, बट फॉर यू द प्रिंसिपल गाइडेंस इज कि आपने ये देखना है कि ये क्वालिफिकेशन मैटर नहीं है, यू एग्री विद दैट, that is something which is fundamental to the user understanding, and the wider use of matter emphasis is not encouraged. मना नहीं है, आप जरूर दें, 2 हो 4 हो, जितने भी समझते हैं कि आपकी सिचुएशन में बन रहे हैं इन योर जजमेंट है, बट वाइडर यूज क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग के ये ऑडिटर कोई क्वालिफिकेशन कर रहा है, बिकॉज नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दीज टेक्निकल चीजें ऑफ मैटर एम्फेसिस. And you will also, practically speaking, the management or companies जो है वो इस पे view लेती है. But if it is in your judgment, it is a fundamental to the user understanding. Do include it. इसमें जो careful रहना है वो ये है कि इसमें आपने अपना views और वो चीजें नहीं बतानी है. आपने उस पैराग्राफ को जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका जिक्र है उसको रेफर कर देना है. You are only, कोई उसमें ओपिनियन नहीं देना कि हाँ हम इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं. आपने सिंपली उस पैराग्राफ को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको रेफर करना है, और क्लोजिंग सेंटेंस वही होता है कि आवर ऑडिट ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड इन दिस रिगार्ड. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वर्डिंग में मैंने बहुत दफा देखा है कि हम खुद से उसको हम लोग खुद से उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं, एडिशनल सेंटेंसेस दे रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल मना है. आपने सिंपली उस फैक्ट को बताना है which is fundamental to the user understanding, and ideally it should be referring to that note where the details are given, and then the closing sentence कि our audit opinion is not qualified in this respect. जी next. पीछे जाइए, अदर मैटर को कवर कर एक स्लाइड पीछे जी. सो ये 706 के अंदर जो अदर मैटर पैराग्राफ है, ये भी ऑडिटर की अगेन जजमेंट में है, ये दे सकते हैं. इसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट कर लें, बिल्कुल क्लियर हो जाए इस बारे में कि अदर मैटर पैराग्राफ विल ओनली कम इनटू प्ले when that is something which is not part of the financial statements. बिल्कुल क्लैरिटी कर लें.
कोई भी कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अदर मैटर। अदर मैटर स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर कि जी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, उसमें कहीं उसके बारे में जिक्र नहीं है। अगर होगा तो वो या आप उस पर क्वालिफिकेशन कर रहे होंगे या उसकी मैटर एम्फेसिस होगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न की होगी कि ऑडिट मैटर होगा। Other matter is only with respect to something which is not in the audit of financial statement. Financial statement का part नहीं है. So now what are those matters? So उस situation में आपने बताना है जहां prior period financial statement किसी और auditor ने की है, तो वो आपका audit other matter में आएगा। कोई वो unaudited है, कोई restriction, कोई distribution के use में है, वो आपने बताना है, वहां बता सकते हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। सो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो यहाँ के जब ऑडिट नया ऑडिटर आता है, फर्स्ट ईयर ऑडिट होता है, तो वहां वो इंफॉर्मेशन देता है कि प्रीवियस ऑडिटर जो है वो ये था और उसने इस फॉर्म ऑफ ऑडिट ओपिनियन को दिया है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट हमने विटनेस की है, हम देखते हैं और हम यूज करते हैं। So other matter paragraph, I again emphasize, is something which is not part of the financial statements. Ji. Next. So earlier I was referring to कि corresponding figure के अंदर नया auditor आया है, first year है, और उसमें corresponding figure के अंदर कोई error अब मालूम हुई है। तो उस सिचुएशन में जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनेजमेंट को बताना है और रिक्वेस्ट कर दी है कि वो प्रीवियस ऑडिटर को, प्रीडिसेसर ऑडिटर को एक्सप्लेन कर दे कि ये एरर है, और अगर इतना टाइम है कि वो ऑडिटर री इशू कर दे। प्रैक्टिकल नहीं है, ये होता नहीं है, बट क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है या एक्सप्लेन किया हुआ है, हाईलाइटिंग। सो अगर की ये रीस्टेटमेंट अगर एरर है और रीस्टेटमेंट कर दी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो फिर तो ऑडिट ओपिनियन क्लीन हो जाएगा। बट स्टैंडर्ड ये ऑप्शन देता है और ये विद द वर्ड मे है, तो ऑडिटर मे इंक्लूड अ मैटर एनालिसिस और मैटर पैराग्राफ डाल सकता है कि ये प्रीवियसली ये था और ये चेंज हुआ है। अच्छा, इस पे आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे 710 को, तो उसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक कॉरस्पॉन्डिंग फिगर होती है और एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, कंपैरेटिव फिगर्स होती है। तो जो हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारा यूज होता है फ्रेमवर्क के अंदर, वो हम कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेते हैं। तो कंपैरेटिव और कॉरस्पॉन्डिंग के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर इस रीस्टेटमेंट के हवाले से डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। आई एम्फसाइज कि ये फर्क उसके अंदर डिफरेंट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट आती है ऑडिटर ऑब्लिगेशन। तो क्योंकि पाकिस्तान में और हम जो कॉमनली हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हमारा यानी हमारा डोमेन है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है। अगर तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स अमेंड हो गई, रीस्टेटमेंट आ गई हुई है, तो आप अपना नॉर्मल क्लीन ओपिनियन उसको दे रहे होंगे। ऑडिटर के पास ये राइट है, यानी ये ऑप्शन आ जाता है, और वहां वर्ड विथ मे है, अगर आप मैटर एनालिसिस इस हवाले से देना चाहें तो दे ले। बट अगेन ऑडिटर जजमेंट है कि एक ऐसा है कि हम देना चाहते हैं तो दे ले, बट इट इज नॉट मैंडेटेड के वहां दे। अगर रीस्टेटमेंट नहीं हुई है तो ऑफ कोर्स फिर दिस इज अ क्वालिफिकेशन मैटर। जी, नेक्स्ट। जी, मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट। नाउ 720 ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एरिया है, और प्रैक्टिकली मैंने देखा है इस पे थोड़ी तवज्जो हमारे जो एंगेजमेंट टीम्स होती है फील्ड में वहां भी थोड़ी कम रहती है, और ये बहुत लेटर स्टेज के ऊपर ऑडिट हैंडल होता है। अदर मैटर, अदर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैंडर्ड ने जिस तरह से डिफाइन किया है वो मैंने इसमें बता दिया है। और जो कॉमनली जो यूज्ड है कि अगर कोई मैनेजमेंट कमेंट्री है, डायरेक्टर रिपोर्ट है, चेयरमैन स्टेटमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट है, और कोई ऐसा कंटेंट है जो लिस्टेड कंपनीज में कॉमनली हम लोग देखते हैं, बट अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर
it is the board of directors report जो कि एक legal requirement है, hence that constitute other information. This is not true in 100% all cases, but predominantly आपको यही मिलेगा जो मैंने आपको listed companies as well as मैंने आपको non listed companies के लिए highlight किया है कि ये constitute करता है. So now what we have to see is कि इस other information के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि inconsistent है with the financial statements. तो in that case जो है वो हमें इस पे act करना होता है. Next slide पर आए, running out of time, तो मैं briefly ये बता दूं कि इसमें standard के अंदर there are 7 situations, 7 different type of situations standard ने examples वहाँ दी हुई है, जिसमें ये है कि अगर listed company है तो क्या होना है, unlisted company है तो क्या word use करना है. अगर आप auditor reporting obligation देखेंगे तो वहां उसमें इसकी कोई स्पेसिफिक वर्डिंग नहीं दी हुई है. वहां लिखा हुआ है कि रेफर टू आइजा 720. तो 720 के अंदर ये बहुत सारी 7 मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं जो वहां उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सिंपली इसको यूं समझ लें कि देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर आपको बिफोर यू साइन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ओपिनियन उस वक्त अदर इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको दे दी गई है, यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है और आपने उनको देख लिया हुआ है. हेंस आप अपनी वर्डिंग जो है वो अकॉर्डिंगली यूज करेंगे कि जी हमें सारी मिल गई हुई है और उसमें कोई इनकंसिस्टेंट नहीं है. ये स्टैंडर्ड ने वर्डिंग डिफाइन की है. लेकिन देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो आपने क्या वर्डिंग यूज करनी है, ये इसका एग्जाम्पल वहां दिया हुआ है. देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसमें आपने क्या यूज करना है, इसकी एग्जांपल भी वहां मिली हुई है. सो आई थिंक फॉर नाउ इसके स्लाइड्स बाकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बट आई एम ड्राइंग योर अटेंशन दैट ये प्रैक्टिकल सिनेरियो बिल्कुल होता है जहां सारी इंफॉर्मेशन मिली हो, सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिली हो, पार्टली इंफॉर्मेशन मिली हो. तो इन सारी सिचुएशन में हमने क्या करना है. फिर इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कोई इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई हो जाए. अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हमने क्या करना है. अगेन एज आई सेड कि कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस विल बी इन्वॉल्व्ड कि ये इनकंसिस्टेंसी है, एंड देन अगर उसने करेक्ट नहीं किया तो फिर विड्रॉइंग और क्वालिफिकेशन के ऑप्शंस जो है वो ऑडिटर के पास अंडर द स्टैंडर्ड ओपन हो जाते हैं. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई अदर इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी आ रही है, या अगर आ भी दी हो तो आप बात करें तो वो करेक्ट हो जाती है. बट ये मैंने सिचुएशन देखी है कि पूरी इंफॉर्मेशन बिफोर यू साइन ऑफ उसमें challenges आ सकते हैं. So accordingly be conscious that you have to use the wording given in 720. जो 7 examples है वहां उसमें से जो आपके केस में relevant हो उसको यूज करें. जो नॉर्मल कोर्स है लिस्टेड कंपनीज के अंदर वी प्रैक्टिकली इंश्योर्स कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और ये मामला कि जी जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो हमें अगर बाद में मिलेगी और कोई ऐसी चीज होगी तो हम रिपोर्ट करेंगे. आई डोंट थिंक सो दैट इज द प्रिफर्ड वे ऑफ हैंडलिंग द अदर इंफॉर्मेशन. वी शुड ऑब्टेन एंड कंक्लूड कि जी इसमें कोई इशू नहीं है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर, अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट जरूर ऑब्टेन करें. जनरली उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां आपको कोई चैलेंज आएगा. सो बिफोर यू साइन ऑफ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ऑडिट रिपोर्ट को इशू करें, the preferred way of handling is to obtain all the other information and accordingly use the wording given in the standard which is relevant to the situation. Next. जी ये बहुत सारे सिचुएशंस हैं. आगे चले. ये सारे बहुत वो जो एग्जांपल्स हैं वो सारे यहाँ लिस्ट किए थे. आगे चले. 720 कहाँ जी. So coming to this slide, the last slide has ISA 230 audit documentation. मैं बहुत ज़्यादा इस पे emphasize कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ. Wherever I'm going, even within my firm जहाँ हम बात करते हैं और जगहों पे बात करते हैं, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है हमारी ऑडिट कंक्लूजन और
रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत जरूरी हो गया, बिकॉज इट इज रियली द ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हमें when it comes to either the QCR review, कोई और इंटरनल रिव्यू है, AOV का कोई कॉन्टेक्स्ट आ गया हुआ है, क्या चीज है जो कि हमें सपोर्ट करेगी, हमें सेव करेगी या हम अपना कॉन्टेक्स्ट दे सकेंगे, वो हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो और कोई चीज नहीं हो। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बहुत स्ट्रांग रखें। अपनी ऑडिट फाइल की जो असेंबली है, उसकी जो कंप्लीटनेस है, ये मैंने जितनी आपको बातें बताई हैं जिसके अंदर ऑडिट फाइंडिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सिग्निफिकेंट मैटर, डिफिकल्टी, हर तमाम चीज जो है वो उसकी जो असेंबलिंग है, उसमें आपके जो कंक्लूजन है, अगर आपने किसी मैटर को क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं ले गए, वो सिग्निफिकेंट मैटर था, उसका जो डिस्पोजल है, योर कंसिडरेशन क्या है, अगर आपने किसी से कंसल्ट किया है, कोई एक्सटर्नल व्यू लिया है, लॉयर ओपिनियन है, एक्चुअली की रिपोर्ट है, कोई और किसी फॉर्म में टेक्स्ट की कोई स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन है, ये तमाम चीजों को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में अपनी फाइल में एविडेंस को क्रिएट करना, उसको वहां मेंटेन करना, वो एब्सोल्यूट नेसेसरी है। No matter how good an audit has been conducted, no matter how good your final conclusions have been, if those are not supported, if those cannot be substantiated, देखिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम कंपनी के फ्रॉड और 100% कोई नहीं है आपकी ऑब्लिगेशन, दिस इज नॉट व्हाट द स्टैंडर्ड सेज, बट इन ऑर्डर टू प्रूव, इन ऑर्डर टू गिव अश्योरेंस कि नहीं, जो ऑडिट के लिए जो चीज रिक्वायर्ड थी, दोज हैव बीन डन, सो वो एविडेंस होगी विद आवर फाइल। Audit documentation is something that is going to support all the audit that has been done. So with this emphasis, जो requirement है वो ये कि जब आप sign off करेंगे, effectively you have all the supporting appropriate, sufficient appropriate audit evidence with you. So ये ऑडिट डेट के ऊपर आपके पास सारी आ गई हुई है, कंक्लूजन्स हैव बीन रीच्ड, एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड, इस डेट को आपने अपना माइंड मेकअप करके ऑडिट ओपिनियन साइन कर लिया हुआ है, तो उसके बाद स्टैंडर्ड्स आपको 60 डेज देते हैं कि अगर आपने कोई फाइल की असेंबलिंग करनी है, कोई रेफरेंसिंग नंबर करना है, तो वो आप कर लें। रियली इट इज नॉट कि आप उस रिपोर्ट साइनिंग के बाद कोई एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करें या कोई आपने वेरिफिकेशन स्टार्ट करनी है। सो डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट पे आपने कंक्लूड कर लिया, नाउ उससे रिलेटेड अगर कोई आपकी असेंबलिंग ऑफ द फाइल के अंदर कहीं क्लीन अप है, कोई ऐसे कमेंट ना लिख दिए हो, उसको करना है, कोई मार्किंग रह गई, तो वो सारी चीज जो है वो कोई साइन ऑफ करना अगर कोई इस टाइप का रह गया हुआ है, तो वो आपने नेक्स्ट 60 डेज के अंदर इसको आपने कंप्लीट करना है। तो 60 डेज के अंदर फाइल को आर्काइव करना है। ये जो असेंबलिंग और आर्काइविंग का जो प्रोसेस है, ये मैं आपको तवज्जो दिला दूं कि अब जो मैंने रेगुलेटरी एक्टिविज्म की बिल्कुल शुरू में बात की थी, उसमें ये एस्पेक्ट भी जो है ना आर्काइविंग का वो आएगा, और अभी जिन लोगों ने अगर ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को इंफॉर्मेशन दी हो, उनको मालूम होगा कि उन्होंने आर्काइविंग की डेट भी जो है अब आपसे अपनी इंफॉर्मेशन में इस साल उन्होंने एडिशनल डाल के ये लिया है। तो इस वजह से मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि असेंबलिंग ऑफ द ऑडिट फाइल 60 दिन है, ड्यूरिंग दैट पीरियड कोई हम वेरिफिकेशंस नहीं कर रहे हैं, जो हम फाइल बना लेंगे उसको फिर आर्काइव होगा और वो विद इन 60 डेज करना है। ये बहुत चैलेंजिंग एरिया रहा है हमारी फर्म के अंदर भी, इसमें चैलेंजेस वो होते हैं कि कोई किसी वजह से एक दिन डेट जो है वो एक दिन आगे पीछे हो गया, जहन में नहीं रहा, तो आपने उसको आर्काइव करने के अंदर कम 61 डेज हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी जो है वो कंसिडर की जा रही है। सो हेंस जो है वो इसकी जो आर्काइविंग का पार्ट है वो बहुत ज्यादा प्लीज आप लोग इसको
तवज्जो रखें अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, अपनी असेंबली ऑफ फाइल का बहुत इस बारे में ध्यान रखें। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी, ये आपने रिटेन करनी है। जो स्टैंडर्ड है वो ये बता रहे हैं कि आपने नो शॉर्टर देन 5 इयर्स, 5 साल आपने करना है। लेकिन मैं आपको तवज्जो दिला दूं कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अंदर जो है वो एक सेक्शन है, आई थिंक 216 है, या मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन उसमें जो है वो ये लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है या एसएससीपी जो है वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है 6 साल पुरानी। तो इस वजह से जो जो सजेशन है, और हम अपने एंगेजमेंट लेटर्स के अंदर जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने 6 इयर्स के लिए रखी है। ऑल्दो जैसे स्टैंडर्ड्स जो प्रैक्टिस है वो 5 ईयर की है, जनरली इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी 5 इयर्स की है। अगर कोई एसईसी रजिस्ट्रांट अगर होता है कोई यूएस के अंदर तो वहाँ शायद 7 साल की है, और जो डॉक्यूमेंटेशन की जो फाइल है 60 दिन की जगह 45 डेज है, तो वो क्योंकि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन यहाँ जो है वो सिर्फ ये ध्यान में रखें कि अंडर द कंपनीज एक्ट वो 6 साल की इंफॉर्मेशन ऑडिटर से मांग सकता है। तो इसलिए अपने एंगेजमेंट लेटर के अंदर इसको 6 साल रखें, और अपने जो फाइल है उसका रिटेंशन पीरियड जो है वो 6 साल भरे। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है, बट स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपका 5 साल का मैंने यहाँ आपको हाईलाइट कर दिया हुआ है। सो 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारे ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहायत उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितनी भी हमने अभी डिस्कशन की है वो असेंबल होनी है इन अ फॉर्म वेयर सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए हम उसको सपोर्ट कर सके। So with that, I think audit conclusion और reporting के सारे aspects मैंने cover कर लिए हैं। I know कि अगर मैं एक standard को पूरा अगर explain करूँ तो probably that requires 2 hours for each standard, but I think I have to cover so many standards, but relevant to our reporting, वो मैंने इसको फोकस रखा है। जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर कोई मैटर्स आ गए वो तो कवर हो ही जाएंगे, लेकिन जो मैटर्स हम अपने कवर लेटर में जहां मटेरियल नहीं होते या किसी और एस्पेक्ट से जो हमने शुरू में जिक्र किया था क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंट मैटर है दैट वांट टू ब्रिंग टू द अटेंशन और उनकी असेसमेंट और कंप्लायंस के लिए बोर्ड के, उसमें खास ख्याल रखें कि उसमें कोई ऐसी चीज ना आ रही हो कि वो मैटर तो क्वालिफिकेशन का था लेकिन आपने क्वालिफाई नहीं किया। तो इसमें बहुत चैलेंज आता है, बाद में रेगुलेटर्स भी जो है उससे चीज पिक करते हैं, और सो इसलिए एहतियात रखें, उसमें उतना ही लिखें जो उसमें जरूरी है। बहुत ज्यादा लिखेंगे और इस तरह से उसकी ड्राफ्टिंग ना हो कि वो दैट इज अलूडेड टू एज अ क्वालिफिकेशन। ये समटाइम हमसे हो जाता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, अगेन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कि वो बड़े बॉर्डर लाइन होते हैं, क्वालिफिकेशन पे नहीं होते, हो भी सकते हैं। तो उसकी वर्ड और उसकी रिपोर्टिंग के अंदर उसकी बहुत ज्यादा एहतियात रखें, बिकॉज फ्रॉम देयर एक डिफरेंट व्यू जो है वो ना ले लिया जाए और आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्वेश्चन ना हो जाए। तो विद दैट, थैंक यू वेरी मच। I hope I've been able to communicate all the relevant requirement and you will find it this useful. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir, for your valuable input. We Sir, might have few questions from our audiences. Please stay tuned with us. सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर आप सुन रहे? जी जी मैं सुन रहा हूँ, प्लीज गो अहेड। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने जी, अब हम उसको रिपोर्ट में एड्रेस किस तरह करेंगे? जी उसमें एक एडिशनल पैराग्राफ आता है मैटर ऑफ फेसिस का, और उसमें बताना होता है कि ऑडिटर की ऑब्लिगेशन है कि ये नॉन गोइंग कंसर्न के ऊपर है। और फिर जो IAS 1 मैंने आपको जिक्र किया था, वो ये कहता है कि ये बताना होगा कि इसका फिर बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या है। और वहां वो विद इन ब्रैकेट अगर आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है कि लिक्विडेशन
फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन बेसिस ऑफ कंपनी। तो जो हमने ICAP ने गाइडलाइंस इशू की हुई है, तो आप वहाँ अकाउंट्स के अंदर उसका जिक्र होता है और आप उस नोट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मैटर एम्फेसिस के तौर के ऊपर रेफर कर सकते हैं। EOM के थ्रू सर या अदर मैटर्स में सर? नहीं, अदर मैटर तो मैंने बिल्कुल क्लैरिटी से आपको बता दिया हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई चीज होगी तो वो अदर मैटर किसी सूरत नहीं हो सकता, तो ये मैटर एनालिसिस के थ्रू होगा। आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट टू यू ऑल कि वेरी सून विद इन फ्यू डेज हमारी कल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने अप्रूव किया है कि एक नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है। वो जो गाइडलाइंस हैं दोज आर बीइंग कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड। उसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक कमेंट्स के लिए इशू करेंगे। जिस तरह से बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक लोकल स्टैंडर्ड हमने इशू किया है जो कि फिर SCCB ने नोटिफाई किया है, तो सिमिलरली जो है वो नॉन गोइंग कंसर्न की जो गाइडलाइंस है दोज आर बीइंग कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड सिमिलर टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन। SCCB से नोटिफिकेशन होगी, बट उसका जो ड्यू प्रोसेस है फॉर रिव्यू एंड कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक वो फ्यू डेज के अंदर इशू होगा। दैट विल बी अ ड्राफ्ट, और उसमें जो है वो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको रीड करें और उस पर कॉमेंट करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए। सर करंटली कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं स्पेसिफिकली जो नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं? कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। ICAP ने गाइडलाइंस इशू की हुई है और वो ऑलमोस्ट, क्योंकि जब ICAP कोई चीज इशू करता है तो वो प्रैक्टिकल टर्म्स में स्टैंडर्ड ही बन जाता है, तो वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। उसमें जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये है कि अपसाइड रिकॉर्ड नहीं होती, डाउन यानी इम्पेयरमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है, ट्रेडमार्क वगैरह, और वो अगर उनकी वैल्यू है सब्सटेंशियल, तो वो फिर डिस्क्लोजर होता है उसका। ये उसका प्रिंसिपल है। छोटा सा उसकी गाइडलाइंस है, 2 या 3 सफ़े हैं, उससे प्लीज आप गाइडेंस लीजिए। Do we have any question from other offices, Faisalabad and Multan? मिस सर एक क्वेश्चन था कि कैम्स के अंदर भी और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर भी जजमेंट हमारी होती है, ऑडिटर की जजमेंट होती है, तो इसमें तो कोई ड्रॉ लाइन है कि हम कैम्स में इसको प्रेजेंट करें या अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर? कोई कंक्लूसिव ड्रॉ लाइन है दोनों के अंदर? अदर मैटर पैराग्राफ में I cannot emphasize more के other matter paragraph financial statement एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ सर। एम्फेसिस ऑफ मैटर जैसे मैंने कहा कि दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एक फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग है। उसके लिए जो आपने जो प्रिंसिपल यूज करना है वो ये देखना है कि जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए ये फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। ठीक है, जो की ऑडिट मैटर है ये वो मैटर्स हैं जो ऑडिट करते हुए ऑडिटर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, यानी जिसने मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन ली। तो दोनों में ये स्लाइड फर्क है। लेकिन अगर आपने कोई मैटर इन योर जजमेंट जी, और कोई क्वेश्चन? गोइंग कंसर्न का क्योंकि अभी सवाल आया था तो जस्ट हाईलाइट कर दूं कि एक पब्लिकेशन है इंस्टीट्यूट की ऑन गोइंग कंसर्न, उसको जरूर बल्कि अपनी टेबल पे सामने रखा कीजिए, क्योंकि उसने गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो उसमें कवर है। वो काफी एक्सटेंसिव गाइडेंस है और उसके अंदर कुछ सजेस्टेड ड्राफ्ट वर्डिंग भी मौजूद है
तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। अगर वो जब कभी भी गोइंग कंसर्न का कोई मैटर अगर आपको लगे ऑडिट के अंदर, तो उस गाइडेंस को प्लीज अपने पास जरूर सामने रखें, क्योंकि वो बहुत क्लैरिटी के साथ मैटर्स को आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जफर साहब, एक सवाल है, ये जी। जो रिपोर्ट और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो 4 पॉइंट्स आपने दिखाए हैं, ये एक तो आप कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी के लिए है, हर एक के लिए नहीं है। दूसरा, क्या रिव्यू रिपोर्ट में भी डाला जाए इसको? नहीं, ये तो जो फॉर्मेट में सबके लिए है ये। अच्छा, और ये रिव्यू रिपोर्ट के लिए भी डाला जाए? नहीं, ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट है, रिव्यू रिपोर्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है। उसका जो फॉर्मेट है वो क्योंकि एक नेगेटिव एश्योरेंस होती है, और उसका जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। उसमें अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कवर नहीं होते रिव्यू रिपोर्ट पे। उसका जो फॉर्मेट है वो आपको ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन 2018 जो है, उसमें आपको रिव्यू रिपोर्ट का भी फॉर्मेट उसमें आपको मिल जाएगा। Do we have any other question? अस्सलाम वालेकुम जी बात सर, मेरा क्वेश्चन आइजा 7-10 से है। मेरे पास एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है। मैंने लास्ट ईयर अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई किया था ऑन 2 ग्राउंड्स। एक, मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही थी सब्सिडरी में, मुझे मैंने मैनेजमेंट को रिकमेंड किया है, मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला, आप उसको इम्पेयर कर दें। दूसरी, मेरी जो क्वालिफिकेशन की रीज़न थी उसमें था कि आपकी कुछ जो है ना एडवांसेस आ रहे हैं, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, मैं उसको भी वेरीफाई नहीं कर सका। मैंने अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी। अब जब मैंने करंट ईयर का ऑडिट स्टार्ट किया, ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा था, मैंने करंट ईयर का जब ऑडिट स्टार्ट किया, उसमें मैनेजमेंट ने इन्वेस्टमेंट भी इम्पेयर कर दी सारी, और जो वो एडवांसेस आ रहे थे उनको भी राइट ऑफ कर दिया। तो अब मैंने जो ऑडिट, मेरी जो बेसिकली क्वालिफिकेशन की रीजन थी वो सारी जो है वो खत्म हो गई हैं। तो अब रिपोर्ट पे मेरा आइजा 7-10 को कंसीडर करते हुए क्या इम्पैक्ट होगा? क्लीन रिपोर्ट होगी, क्लीन रिपोर्ट होगी सर। अनमॉडिफाइड। हम कहीं अपनी रिपोर्ट में ओपनिंग बैलेंसेस से रिलेटेड रेफरेंस भी नहीं देंगे इसका? पिछली तो आपने वैसे ही क्वालिफाई की हुई है ना, तो अब तो आपका रिजॉल्व हो गया। तो बट ये प्लीज, ये क्योंकि अभी हम ओपन सेमिनार में हैं, क्योंकि जब केस स्पेसिफिक होता है तो वो बड़ा डिटेल में देखना होता है, बट बेस्ड ऑन द ब्रॉडर गाइडेंस, डोंट होल्ड मी फॉर दैट। जो आप डिटेल बता रहे हैं उसमें मेरा व्यू ये है कि ये आपकी क्लीन रिपोर्ट होगी, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन के मैटर्स थे वो रिजॉल्व हो गए। सर, अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ, ये लास्ट ईयर से रिलेट करते हैं और इसका जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो उसमें उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, तो मैं फिर भी क्लीन रिपोर्ट इशू करूंगा? आपने पिछली रिपोर्ट तो क्वालिफाई कर दी है ना, तो आपकी तो जो भी बैलेंसेस थे वो तो आपके क्वालिफाई हो गए ना। अब आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो आपकी पिछली रिपोर्ट पे क्वालिफिकेशन मौजूद है, इस दफा वो चीज रिजॉल्व हो गई हुई है, आप वो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है और आप मैटर एनालिसिस देना चाहते हैं तो मतलब इस सिनेरियो में अगर मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तो मैं एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ ऐड कर सकता हूँ? जी, मेरी राय सिर्फ यही है, बट ये थोड़ा सा वो ओपनिंग बैलेंस पे किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है, ये केस स्पेसिफिक देखना होगा। तो उस पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो टेक्निकल हेल्पलाइन है वहां से देख लें। मैं बेस्ड ऑन जो इंफॉर्मेशन अभी आप बता रहे हैं उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये आपकी क्लीन रिपोर्ट